Good morning, students. Students, today I am going to initiate a next chapter of your bio, and the chapter is Morphology of Flowering Plants. Students, in this chapter, we will discuss about the different structures of plants like stem, like root, like leaf, in detail. So, initially, I want to explain that what are the various parts of a typical flowering plant. एक प्लांट में आपको कौन कौन से पार्ट्स नज़र आएंगे. तो सबसे पहले बात करें तो जनरली देर आर टू सिस्टम्स इन द प्लांट्स, अ रूट सिस्टम एंड अ शूट सिस्टम. ठीक है. नाउ व्हाट इज रूट सिस्टम एंड व्हाट इज शूट सिस्टम? आई एम गोइंग टू टेल यू दैट इट्स अ homogeneous part which consists of roots and its branches. While what is shoot system? Shoot system is a homogeneous part of the plant which is consisting of stem, branches, leaves, flowers, fruits, etc. etc. ठीक है. Now in another words we can say that the in plant's body it has two different parts. Some ones are called vegetative parts and some ones are called reproductive parts. So especially the vegetative parts which are promoting the growth of the plant are called vegetative part, like root, stem and leaves, while the reproductive part is responsible for the reproduction process. And in flowering plants we are discussing only about the flowering plants, so I have to tell you that in flowering plants basically flowers are the reproductive part. Okay, so here in this chapter I am going to start the very first one topic, root system. Okay, then we will discuss about the shoot system. So initially I will discuss about the root system, and before starting it I want to explain few terms related to it. ठीक है. The study of the external structure of plants is called external morphology, while the study of the internal structure of the plant is called internal morphology, or it is also called as anatomy. ठीक है. And I want to tell you something about the root system, because initially we are talking about the root system. So the root system is basically positively geotropic. Positively geotropic means it grows downwards uh, dur- in the direction of the gravity. So we can say that it shows positive geotropism, or root is positively geotropic, while it is negatively phototropic. It runs opposite to the sunlight. So we can say that it is showing uh, a kind of negative phototropism. ठीक है. नाउ द अनदर थिंग, हाइड्रोट्रोपिज्म की अगर बात करें तो डेफिनेटली द रूट्स आर ग्रोइंग टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ द वाटर, सो इट इज़ शोइंग पॉजिटिव काइंड ऑफ हाइड्रोट्रोपिज्म. ठीक है. एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रूट्स? यू नो वेरी वेल दैट रूट का काम है प्लांट को फिक्सेशन प्रोवाइड करना, एंकरेज प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, एंड समटाइम्स विद द सॉइल इट ऑल्सो एक्सचेंज गैसेस. तो गैसियस एक्सचेंज इसका काम होता है. समटाइम्स रूट इज़ स्टोरिंग फूड, तो फूड का स्टोरेज इसका काम होता है. ठीक है. एंड इन लिटिल बिट केसेस समटाइम्स द रूट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फूड मैन्युफैक्चर. ठीक है. एंड समटाइम्स roots are modified to absorb gases from the atmosphere, as well as it absorbs moisture from the air too. ठीक है. These are the common features or common characteristics of the roots. Now I am going in detail, and I want to discuss what are the various parts of the root and what are their functions. So if we will observe, so we will find out there that there are five different parts in a root. ठीक है. And what are these parts? Now you can observe here in the figure. ठीक है. You are observing root cap, root hair, you are observing zone of meristematic activity, you are observing zone of elongation, you are observing zone of maturation. So I will discuss in detail one by one about them. ठीक है. तो if you are observing here in this table, तो you are observing five different parts. One by one with the help of this figure I will explain each part. ठीक है. So initially I am talking about region of root cap. So try to find out that where is root cap. Here you can see in this figure the terminal portion of the root is called as root cap. ठीक है. And what is its function and what are the other features of root cap, I am going to discuss one by one. ठीक है. तो the main function is to provide protection to root, because root is regularly penetrating the soil. तो जब सॉइल को पेनिट्रेट कर रही है तो फ्रिक्शन से रूट को नुकसान पहुंच सकता है, तो उसे प्रोटेक्शन देने का काम करती है. नाउ सिचुएटेड इन अबव रूट, तो ये इसकी सिचुएशन कहाँ रूट्स में होगी. ठीक है. एंड features appears like multicellular cap-like structures, and function I already told you that secretes mucilage for lubrication.
The first part is root cap. Now the second part is called as cell division or मेरिस्टेमेटिक रीजन, यानी कि द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, वी कैन से दैट दूसरा रीजन जो है उसे बोलते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ठीक है, और ये जो बना होता है, जाहिर सी बात है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का रीजन है तो ये यानी कि एपिकल मेरिस्टेम का बना हुआ होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, कॉम्पैक्ट अरेंज मेरिस्टेमेटिक सेल्स इसके पास होती हैं, और रूट कैप के बाद का रीजन है अगर इसकी हम बात करें। ठीक है, और फीचर्स क्या है इसके, ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट, ये क्योंकि लगातार मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होगी तो ये प्लांट्स यहाँ पर ग्रो करेगा, तो ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट हो गया। फंक्शन हो गया इनेबल लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ द न्यू सेल्स, तो सेल्स की लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, नाउ आई ट्राई टू आइडेंटिफाई वेर इज रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। नाउ इट इज क्लियरली लेबल्ड हेयर, यू आर ऑब्जर्विंग हेयर आफ्टर द रूट कैप द मेरिस्टेमेटिक जोन यू आर ऑब्जर्विंग बिटवीन टू लाइन्स। ठीक है, तो इसे बोलते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज रीजन ऑफ इलोंगेशन। नाउ व्हाट इज रीजन ऑफ इलोंगेशन? तो रीजन ऑफ इलोंगेशन में आप देखेंगे न्यूली सिंथेसाइज सेल, क्योंकि जो नई सेल्स होंगी वो नीचे, वो जो नई सेल्स होंगी ऊपर की ओर अरेंज होते चले जाएंगे, और जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कर रही हैं सेल्स वो आपकी नीचे की ओर लोकेटेड होंगी। ठीक है, दे आर लोकेटेड अबव द मेरिस्टेमेटिक रीजन एंड सेल्स आर इलोंगेटेड रैपिडली, और लगातार अपनी साइज़ में इलोंगेशन कर रही होती हैं। इनका फंक्शन जो होता है, ये मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में क्या करती हैं, इनका हेल्प करती हैं। नाउ यू कुड ट्राई टू फाइंड आउट वेर इज रीजन ऑफ इलोंगेशन और जोन ऑफ इलोंगेशन यू आर ऑब्जर्विंग हेयर इन द फिगर। ठीक है, नाउ इसके बाद जो आता है फोर्थ रीजन, इसको बोलते हैं रीजन ऑफ रूट हेयर और एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर आपको रूट हेयर्स नज़र आएंगे इसके ऊपर, अब देख रहे हैं आप यहाँ पे क्लियरली, आपको इस रीजन तक कहीं भी रूट हेयर नज़र नहीं आए थे। इसके ऊपर आप देख रहे हैं फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, कहीं लेबल भी किया होगा इनको, ये रूट हेयर्स देख रहे होंगे आप ये। तो दीज आर द रूट हेयर्स। तो इसके बाद जो जो फोर्थ रीजन होता है रीजन ऑफ रूट हेयर्स, इसका काम क्या होता है? तो यू आर वट आर दीज रूट हेयर्स आर टाइनी आउटग्रोथ्स एंड दीज आर प्रेजेंट ओवर द रूट इन द मीन्स, जहाँ पे आपका रीजन ऑफ इलोंगेशन है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, रूट कैप है, उसके ऊपर होगा। ठीक है, सिंगल सेल्ड होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं। ठीक है, और सॉइल के कांटेक्ट में रहते हैं। इनका मेन फंक्शन जो होता है सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम होता है। इसके बाद आप देखेंगे लास्ट रीजन जो होता है, लास्ट रीजन इज कॉल्ड एज रीजन ऑफ मैच्योरेशन और जोन ऑफ मैच्योरेशन और जोन ऑफ डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के बाद जो नई सेल्स बनी हुई होती हैं ना, इनमें क्या होता है, मैच्योरेशन होना स्टार्ट होता है। ये आपकी कॉटेक्स में कन्वर्ट होती हैं, ये जाइलम में कन्वर्ट होती हैं, फ्लोएम में कन्वर्ट होती हैं, या अब हम कह सकते हैं कि ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ में भी कन्वर्ट हो सकती हैं। एंड इट फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द रूट, ये रूट का जो मेजर पार्ट है इसी से बना हुआ होता है। ठीक है, इससे होता है कि कभी कभार क्या होता है, इससे लेटरल रूट भी बाद में डेवलप हो सकती हैं। इसका मेन फंक्शन है रूट को फिक्सेशन करना। ठीक है, यानी होल्डिंग एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये रूट को सॉइल में होल्ड करे रखने में मदद करती है, और इसके अलावा ये एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में भी हेल्प करती है। सो वी डिस्कस 5 डिफरेंट रीजन्स। फर्स्ट रीजन वाज रूट कैप, सेकंड रीजन वाज रीजन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, थर्ड रीजन वाज जोन ऑफ इलोंगेशन, फोर्थ रीजन वाज रूट हेयर्स, एंड द लास्ट वन रीजन ऑफ जोन ऑफ मैच्योरेशन और जोन ऑफ डिफरेंशिएशन। दीज आर द डिफरेंट जोन्स। ठीक है, नाउ as we know that there are two different types of roots there in the flowering plants, tap root and fibrous root. ठीक है, now what are tap roots I am going to tell you very quickly. ठीक है, tap root develops from the radicle and grows vertically downward. ठीक है, and it may have either primary root, secondary root or tertiary root. So here in the figure you are observing the radicle directly developing into the tap root. The broader one, we can say that the मोटी वाली जो रूट है वो आपकी प्राइमरी रूट है, जो इससे दूसरी रूट निकलेगी उसे सेकेंडरी बोलेंगे, जो तीसरी निकलेगी वो टर्शरी होगी। ठीक है, समझ में आ गया ना। रूट्स आर एक्रोपिटल सक्सेशन, ओल्ड एट बेस एंड यंग ऑन टॉप। तो जो रूट्स होती हैं एक्रोपिटल सेक्शन में होती हैं। एक्रोपिटल का मतलब हो गया कि अल्टरनेट पैटर्न पे ये आपकी क्या होंगी, रूट्स निकल के आएंगी। एक लेफ्ट साइड से निकलेगी तो एक राइट साइड से निकलेगी, फिर एक लेफ्ट से निकलेगी, फिर एक राइट से निकलेगी, एक लेफ्ट से निकलेगी। एक तो आपकी प्राइमरी रूट हो गई, एक इस प्राइमरी रूट के लेफ्ट से राइज होगी, तो एक राइट से राइज होगी, फिर लेफ्ट से, फिर राइट से। फिर आप देखेंगे जो न्यूली सिंथेसाइज रूट्स हैं वो ऊपर की ओर होंगी, जो ओल्डर रूट होंगी वो नीचे की ओर होंगी। और बेसिकली आपको ये कहाँ मिलती हैं, डाइकॉट प्लांट्स में। डाइकोटिलीडन जो होते हैं उनमें आपको टैप रूट देखने के लिए मिलती है। वहीं जो फाइब्रस रूट है, फाइब्रस रूट्स डेवलप फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द रेडिकल। तो प्राइम जो आपकी क्या बोलते हैं कि फाइब्रस रूट है, रेडिकल के किसी भी पार्ट से निकल जाती हैं। ठीक है, दे हैव इक्वल साइज ग्रोथ ऑफ रूट्स। इसमें ऐसा कोई नहीं है प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, टर्शरी है। इसमें सारी की सारी रूट्स इक्वल साइज़ की होती हैं। तो इन रूट्स को फाइब्रस रूट भी बोला जाता है। ठीक है, और ये बेसिकली किन प्लांट्स में देखने के लिए मिलेंगी, आपको मोनोकॉट प्लांट्स में देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई विल डिस्कस टुमारो। थैंक यू, बाय बाय।